Good morning, student. Now, welcome in your bio class. Today's is third lecture. So, in previous lecture, we have discussed about taxonomy, systematics. We have discussed about characteristic feature, identification, classification, nomenclature, binomial nomenclature, all things. Again, today's topic is taxonomy categories. So before we start taxonomy categories, we will again explain you we will again revise what is taxonomy. Taxonomy is a basically process of classification. All living organisms can be classified into different taxa. The process of classification is called taxonomy. External और internal structure. Taxonomy किसके ऊपर based होती है? External और internal structure. Along with structure of cell, जिसमें structure of cell भी include है. Development process and the ecological formations of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. Taxonomy studies basically it is depends on the external internal structure as well as along with the structure of cell, development process and ecological informations of the organisms are essential and it's from the basis of modern taxonomy study. So characteristics, identification, classification and nomenclature are the process that are basics to taxonomy. What is the basics of the taxonomy? First, it is it is it is characteristics, characteristics. Pen is not going smoothly. First characteristics, second identification, second is identification, third one is classification, identification, then classification, nomenclature, and these are the some process on the basis of taxonomy. Taxonomy का base क्या है? These are some following point: characterizations, identification, classification and nomenclature. Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested to knowing more and more about the various kind of organisms, particularly with reference to their own use. In early stage, human beings needed to find source for their basic needs of food, uh, clothing and shelter. Hence, the earliest classification were based on the use of the various organisms. Human beings were since long not only interested in the knowing more about different kinds of organisms and their diversity, but also the relationship among them. The branch of study which refer to the systematics, the branch of study which refers to systematics. The word systematics is derived from Latin word system and means systematic arrangement of organism. System means जैसा बोलते हैं ना सिस्टम पे काम करो, मतलब means एक systematic arrangement of organisms. Clear? And the scope of systematics were later enlarged to introduce identification, nomenclature and classification. इसी system को आगे हमको इसी के बेस पे identification, classification and nomenclature process complete होगी. Systematics takes into the account evolutionary relationship between the
ऑर्गेनिज्म। और सिस्टमेटिक्स एक तरीके से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी, ऑर्गेनिजम्स के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी शो करती है। सो दीज आर द सम पॉइंट्स अबाउट taxonomy. Now we will read taxonomy categories. So today's we will start taxonomy categories. Classification is not a single step process but involve hierarchy of step in which each step represent or rank or categories. क्लासिफिकेशन एक स्टेप में होने वाली प्रोसेस नहीं है, बट ये एक नेटवर्क है और एक चेन है जिसमें कि बहुत सारी एवरी स्टेप रिप्रेजेंट और रैंक और कैटेगरीज। आप लोग जब किसी भी जॉब के उस पर जाते हो या स्कूलिंग ही सिस्टम पर देख लो, है ना, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, ऐसे डिफरेंट रैंक होती है ना, उसी तरीके से वही रैंक, इसी तरीके की रैंक किस में होती है, क्लासिफिकेशन में होती है। तो ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरीज सिंस द कैटेगरीज इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट। तो कैटेगरीज क्या है, एक तरीके से टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट का ही एक पार्ट है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द टैक्सोनॉमी कैटेगरी। और जितने भी स्टेप और रैंक आती है उसको एक वर्ड दिया हुआ है, दिस वर्ड इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी कैटेगरी। टैक्सोनॉमी कैटेगरी वी विल डिस्कस इन लेटर पॉइंट्स एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर टू कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमी हायरार्की, ठीक है। और ये सब पूरी कैटेगरीज एक कंबाइंड रूप से टैक्सोनॉमी हायरार्की फॉर्म करती है, ठीक है। ईच कैटेगरीज रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर कैटेगरीज एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक और इट इज़ कॉमनली टर्म एज टैक्सॉन। अभी आपने टैक्सा वर्ड रीड किया था ना, तो टैक्सा और टैक्सॉन किसके लिए, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है ये, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आपने यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रीड किया है, ठीक है ना, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम रीड किया हुआ है, जस्ट लाइक अ टैक्सा इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। It is called unit of classification. The taxonomy categories and hierarchy can be illustrated by in the examples, just like एक examples दिया जाए, insects represent a group of organisms sharing a common feature like 3 pair of joints, like जैसे एक insect है, for example we have taken insect यदि है means it has 3 pair of joints like, ठीक है। द इंसेक्ट एक कैटेगरीज है और एक रैंक है जो ये शो करती है कि जितने भी इंसेक्ट हैं उसमें एक कॉमन कैरेक्टर होगा, 3 पेयर ऑफ जॉइंट्स लाइक। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड and thus were given a rank or categories. Can you name of such group of organisms? Remember, group represent category or categories further denotes rank, ठीक है। तो अब इसको अभी अलग अलग ग्रुप में डिफाइन करते हैं, कैसे करते हैं, we just take examples. First, each rank or taxon in fact represent a unit of classification. आपने अभी ऊपर रीड किया है ना, टैक्सा क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ईच टैक्सा, रैंक और टैक्सॉन रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। These taxonomic group categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregation. हर ग्रुप और कैटेगरीज एक बायोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन रखती है, डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटाइटीज, उसका लिए एक पर्टिकुलर एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, नॉट मेरली मार्फोलॉजिकल एग्रीगेशन। पूरी तरीके से वो मार्फोलॉजिकली उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है मार्फोलॉजिकली भी और एनाटॉमिकली भी। क्लियर स्टूडेंट? Taxonomy study of all known organisms have leads to development of common categories such as kingdom. सबसे पहले जो आता है it is kingdom. एक कॉमन कैटेगरीज है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इट इज किंगडम। पूरे टैक्सा कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, एक सबसे ब्रॉडेस्ट क्लासिफिकेशन है, ब्रॉडेस्ट टैक्सा है, इट इज किंगडम, 5 किंगडम सिस्टम, जस्ट लाइक
you have read in class 10th 5 kingdom system, 9 5 kingdom system. तो सब 5 kingdom वो है जिससे पूरे टैक्सास अराइज हुए हैं. तो इट इज़ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम. इसके बाद किंगडम्स के बाद नेक्स्ट टैक्सा इट इज़ फाइलम. ये क्या है? रैंक है. कैटेगरीज रैंक है और इसी कैटेगरीज रैंक से पूरा क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ और पूरी क्लासिफिकेशन हायरार्की फॉर्म हो रही है. क्लियर स्टूडेंट? फाइलम हम लोग यूज़ करेंगे एनिमल के लिए. एनिमल क्लासिफिकेशन करना है वी विल यूज़ फाइलम, और यदि प्लांट्स का करना है वी विल यूज़ डिवीज़न फॉर प्लांट्स. क्लियर स्टूडेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. किंगडम के बाद फाइलम और डिवीज़न दोनों की एक ही रैंक है, बट डिवीज़न वी विल यूज़ फॉर प्लांट, फाइलम वी विल यूज़ फॉर एनिमल. क्लियर? देन क्लास. फिर क्या आ रहा है? क्लास. दिस इज अगेन नेक्स्ट रैंक. और ये सब क्या है? एक टैक्सा, 2 टैक्सा, 3 टैक्सा. ठीक है, ये टैक्सा है. क्लास के बाद देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, एंड लास्ट वन रैंक इज स्पीशीज. अब एक चीज़ और आप ध्यान दो, स्पीशीज कनेक्टेड है जीनस से. ठीक है, सो मैनी स्पीशीज फॉर्म जीनस, सो मैनी जीनस फॉर्म family, so many families form order, so many order form class, so many classes of form division, so many division or phylum form a kingdom. Clear? So kingdom is a highest or broadest classification. Species is a lowest category or lowest taxa. Clear? और kingdom is a, ठीक है, ये क्या है? ब्रॉडेस्ट. किंगडम क्या है? ब्रॉडेस्ट सिस्टम. ठीक है, तो हम लोग कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? ब्रॉडेस्ट टू लोएस्ट. क्लियर? द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स that help in identifying similarities and dissimilarities among the individual of same kind of organisms as well as other kind of organisms. अब आपको एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई. किंगडम से जब फाइलम इन्वॉल्व आया होगा तो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर आया होगा. फाइलम से फिर जब क्लास फॉर्म हुई होगी तो भी अलग अलग डिविजन्स अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अकॉर्डिंग होगी. तो ये जो डिविजन्स हो रहे हैं किंगडम टू स्पीशीज, दैट इज डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर. ठीक है, और दीज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच आइडेंटिफाइड पर्टिकुलर टैक्सा, पर्टिकुलर यूनिट क्लासिफिकेशन और रैंक, इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. Clear? Now the questions you may ask, how the place of organisms in various categories. और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करके वी कैन क्लासीफाइड एनी ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट रैंक. क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज. मतलब क्लासिफिकेशन किसके बेस पर हो रहा है? सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज. ठीक है, कभी कभी ये जैसे फॉर एग्जाम्पल्स जीनस, मैंगो जीनस है. ठीक है ना, मैंगो इंडिकीफेरा इज अ जीनस. ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इज अ जीनस. तो जीनस तो एक है बट स्पीशीज आर सो मैनी. अब जीनस मतलब मैंगो के कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक है बट मैंगो डिफरेंट स्पीशीज के कारण वो डिफरेंट उसकी स्पीशीज होती जाएगी क्योंकि वो थोड़ा सा फिजिकली उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में डिफरेंट होता जाएगा. ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज among the individual of the same kind of organisms as well as the other kind of organisms. और उनकी डिससिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को, सेम ऑर्गेनिजम्स को भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है और अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है. सो आई थिंक
This is called as taxonomy categories. Now we will take taxonomy categories in detail. ठीक है? So first we will take species. We will start from lowest to broadest. सबसे lowest जो rank और taxa है, this is called as species. How to define species? Group of individual organisms which have fundamental similarities. Group of individual organisms with a fundamental similarities as a species. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बहुत सारे इंडिविजुअल, जैसे ह्यूमन बीइंग इज अ स्पीशीज. ठीक है? तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद अ फंडामेंटल, जिसके एक फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ है. कहीं का भी ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, वर्ल्ड की किसी भी उसका कॉन्टिनेंट का ह्यूमन बीइंग हो, फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ उसमें सेम रहेगी. दिस इज कॉल्ड एज स्पीशीज. वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. अब ह्यूमन बीइंग के डिफरेंट रेसेस हैं, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल अफ्रीका साइड पर स्किन पूरी ब्लैक है, अलग तरीके का चिंपैंजी टाइप का लुक्स है. ठीक है. यदि हम यूरोपियंस कंट्री पे जाते हैं तो टॉल और वैसी स्किन है. कैसे? इनकी फाइन स्किन है, टॉल है वो, और स्किन फेयर है. ठीक है. लेकिन इंडियंस को उसमें आते तो दोनों तरीके की स्किन है, मिक्स स्किन है. तो ये क्या है? डिफरेंट स्पीशीज़, जो एक ह्यूमन बीइंग स्पीशीज़ जो अलग अलग उसमें डिफाइन की है. ठीक है. तो क्या है ये लाइन हम लोगों ने रीड किए. The one should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. जिसको हम external differences से भी differentiate करते हैं. सब human being है but external differentiation है. This is called as morphological differences. Let us consider Magnifera indica. Again Magnifera indica, ठीक है. The Solanum tuberosum potatoes, ठीक है. Panthers, Leo, Loin, all are three names. Indica, tuberosum and Leo represent the specific aphid. ठीक है. While the first word Magnifera, Solanum, Panthera are the genre and represent another high level of taxon. ठीक है. Genus, ठीक है. Each genus may have one or more than one specific एफिथिड्स रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. एक जीनस जो है, ये जीनस वो एक से ज़्यादा उसमें स्पेसिफिक एफिथिड्स हो सकता है एक हर ऑर्गेनिजम्स के साथ. मतलब स्पीशीज़ एक होगी, उसके जीनस डिफरेंट हो सकते हैं बट हैव मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़. लेकिन उसमें बेसिक मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ होगी. फॉर एग्जांपल पैंथेरा. ठीक है. पैंथेरा किसके लिए है? लायन फैमिली के लिए यूज़ होता है पैंथेरा. Panther are the genre and represent another high level of taxon or categories. Each genus may have one or more than one specific epithets represent a different organisms but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithets called Tigris, and Solanum includes species like Nicrum and Melangina. Human being belongs to species Sapiens, Homo sapiens. तो species कौन से उसके? Sapiens, which is grouped of the genus. एक जो species है वो कई सारे जीनस को ग्रुप करती है. क्लियर? Sapiens, which is grouped in a genus Homo. The scientific name thus for human being is written as Homo sapiens. Clear? Homo word सबके लिए कॉमन होगा और sapiens में चेंज आ सकता है. ठीक है. वो स्पीशीज को शो करेगा. अब आता है
सेकंड आता है स्पीशीज़ के बाद आता है जीनस। स्पीशीज़ के बाद सेकंड रैंक कौन सी आ गई? जीनस। जीनस कंप्राइजेज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। जीनस किससे फॉर्म हो रहा है? बहुत सारी स्पीशीज़ से, ठीक है। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. I think you have understood this line. Genus comprises a group of related species. एक genus किससे बन रहा है? Group of related species से, which has more characters in common in comparison to species to other genera. जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं यदि हम एक अदर स्पीशीज़ के जेनरा से कंपैरिजन करें। वी कैन से जेनरा इज़ एग्रीगेट्स ऑफ स्पीशीज़। यदि हम इसको एक और शॉर्ट फॉर्म पर डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं? जेनरा और जीनस। जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़. For examples, potatoes and brinjal are two different species, but both belong to genus Solanum. ठीक है, मतलब स्पीशीज़ तो डिफरेंट हो सकती हैं, बट स्पीशीज़ का डिफ्रेंसिएशन भी कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर होगा, ठीक है, और जीनस भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, विद सेवरल कॉमन फीचर। विद ऑल species of the genus Panthera, the genus differ from another genus. genus जो हैं कभी भी दूसरे स्पीशीज के जीनस से डिफ्रेंशिएट होते हैं, कभी उनमें कोई कॉमन कैरेक्टर नहीं होगा। क्लियर? थर्ड आता है फैमिली। जीनस के बाद फिर कौन सी आई? थर्ड रैंक इज फैमिली। वी आर गोइंग टू लोएस्ट टू ब्रॉडेस्ट। सबसे पहला, सबसे जो लोएस्ट क्लासिफिकेशन है, वी विल टेक एट फर्स्ट स्पीशीज, देन जीनस, देन फैमिली। फैमिली, इट इज़ अ नेक्स्ट कैटेगरी। इट इज़ ग्रुप, इट हैज़ कंप्राइजेज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। बहुत सारे जीनस मिलकर फैमिली फॉर्म कर रहे हैं। जीनस से क्या फॉर्म हो रही है? फैमिली, ठीक है। Families are characteristics on the basis of both vegetative and reproductive feature. Families के डिफाइन की है दोनों कैरेक्टर को लेकर, ठीक है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर को लेकर, ठीक है। अमंग प्लांट्स, फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनरा, सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा। जैसे एक इन्होंने 3 वो लिए हैं, जेनरा लिए हुए हैं, ठीक है, जीनस लिए हैं, सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा, उसको एक ही फैमिली सोलेनेसी पे रखा है। क्लियर? अमंग इसी तरीके से एनिमल्स में भी जीनस पैंथेरा कंप्राइजेज लॉयन, टाइगर, लेपर्ड्स इज पुट अलॉन्ग विद द जीनस फेलिस, मतलब कैट, इन दिस फैमिली फेलिडी। जैसे जीनस 2 है, जीनस में पैंथेरा की डिफरेंट, जिसमें लॉयन आ गया, टाइगर आ गया, लेपर्ड्स आ गया, ठीक है, और फेलिस में कैट्स आ गई, और दोनों इन सब की फैमिली क्या हो गई? फैलिडी। फैलिडी फैमिली में लॉयन भी आ जा रहे हैं और कैट भी आ रहे हैं, ठीक है। तो फैमिली में जीनस बहुत सारे हो सकते हैं, एक फैमिली में कई सारे जीनस हो सकते हैं। वी कैन से सो मैनी जीनस फॉर्म अ फैमिली. If you observe the feature of cat and dog, you will find some similarities or some differences. A cat और dog में दोनों की फैमिली सेम है, बट दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं और बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं। तो डिफरेंसेस के बेस पर उसको फैमिली में डिफाइन किया। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिली, फैलिडी और कैनाइडी रिस्पेक्टिवली। फैलिडी में क्या आएंगी? कैट आएंगे, और कैनाइडी में क्या आएंगे? डॉग्स आएंगे। सो दीज आर द फैमिली। नेक्स्ट, फैमिली के बाद क्या है? ब्रॉडर क्लासिफिकेशंस पर हम लोग चल रहे हैं। अपर, अब फैमिली के बाद ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिली हो सकते हैं। सो मैनी फैमिलीज फॉर्म अ ऑर्डर। फर्स्ट वी हैव अर्लियर, वी हैव
read earlier that categories like species, genus, families are based on the number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomy categories are identified based on the aggregates of character. अब order से aggregations of character है. Aggregation मतलब कई characters को एक साथ लेते हैं. ठीक है. Order being a higher categories in the assemblies of family which exhibit few similar character. The similar characters are less in number as compared to different genera include as a family. Plants family like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymoniales. ठीक है. अब ऑर्डर इसका क्या है? पॉलीमेनियल्स. और इसमें एक ऑर्डर में कितनी फैमिली आ रही हैं? कॉन्वॉल्वुलेसी, सोलेनेसी एंड सो ऑन. तो इस तरीके से देखोगे कि फैमिली ऑर्डर में कई फैमिली इंक्लूड हैं. ठीक है. फैमिलीज लाइक फैलिडीज जस्ट लाइक कॉर्निवोरा. एक ऑर्डर कॉर्निवोरा एनिमल पर है जिसमें दो फैमिलीज इंक्लूड की गई हैं, फैलिडीज एंड कैनाइडीज. फैलिडीज कैट फैमिली, कैनाइडीज डॉग फैमिली. अब ऑर्डर के बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कैटेगरीज और टैक्सॉन इज कॉल्ड एज क्लासेस. ऑर्डर के ऊपर कौन सा है? क्लास. मीन्स सो मैनी ऑर्डर फॉर्म्स आर क्लास. ठीक है. रिलेटेड ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर मिलकर क्लास बना रहे हैं. क्लियर स्टूडेंट? सो क्लास, phylum and kingdom we will detailing in next videos. Thank you student. Have a nice day.